Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start this session formally now. I'm thankful to all the panelists, those who have reached to this ICRA University for this Budget 2022 and 23 talk. This debate is about the budget and its problems and issues. We are going to start our proceedings formally. I would like to invite Mr. Rizwanullah to have some few verses of recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Before starting this seminar, I would like to introduce my panelists. In our panel today, we have Mr. Zubair Motiwala. He is Independent Director, Smile Industries Limited, Director, Port Qasim Authority, Director, Interstate Gas Systems Private Limited, Director, Dawood University of Engineering and Technology, and previously he was the Chairman at Sindh Board of Investment and President of Karachi Chamber of Commerce and Industry. Along with this, we have Dr. Kaisar Bengali. Dr. Bengali has an economist, over 45 years of experience in teaching research and policy advice in Pakistan. He has degrees of his PhDs and masters from Boston University, USA. His areas of interest and issues in planning and development, macroeconomic and fiscal policies. His current position is consultant for economic affairs and head of Chief Ministers of Policy Reform Unit, Government of Balochistan. Earlier, he was advisor to the Chief Minister of Sindh for planning and development, and also he was the head of the Benazir Income Support Program and designed the program also. Shortly, we will have Abdul Qadir Memon with us. Right now, we have Dr. Ayub Meher. He is serving as the professor in ICRA University and associated with the Asian Development Bank Institute for the project on measuring impact and financing infrastructure. Also, he worked for Federation Pakistan Chamber of Commerce and Industries as Director General R&D for 6 years, and he prepared research-based policy recommendations for the formulation of national economic strategies. Along with this, we have Mr. Muhammad Akram Khan. He is the editor, Jung Forum, Karachi, since 1993. He has a vast 28 years experience of moderating such panels. So a big warm welcome to our panelists. Thank you so much, Zubair Motiwala Saab. Thank you so much, Kaisar Bengali Saab. Thank you so much, Akram Saab. Now formally, thank you so much, Ayub Meher Saab. And now formally, we can start the session. Thank you. शुक्रिया जक्की राशदी साहब, तारुफ का मेरा बोझ हल्का करने का। इकरा यूनिवर्सिटी में ये शायद हमारा दूसरा फोरम है। इससे पहले भी हम एक मरतबा फोरम कर चुके हैं, लेकिन शायद कोई टाइम हो गया 3-4 साल से पहले। जंग फोरम लाइक ए टीवी टॉक शो की तरह होता है। आप टाइम से परेशान ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट का होगा और इसी तरह लाइवली शाया होता है। जिस तरह यहाँ सवाल जवाब होगा, इसी तरह ये आप जंग में इसको पढ़ सकेंगे। इस वक्त आप सबका ताल्लुक मेरे ख्याल में बिजनेस इकनॉमी से ही होगा ऑलमोस्ट। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो परेशान कर रहा है वो मुल्क की मईशत ही है। मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, कहाँ खड़ी है, और ये कि बजट बनना कितना मुश्किल होगा। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की शायद एक बड़ी वजह मईशत की ज़वाल पजीरी ही थी। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ
ऑलमोस्ट जा चुके हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि टेक्निकली हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है। पाकिस्तान की मईशत बहुत मुश्किल में है, डॉलर हमारे पास है नहीं, यही वजह है कि डॉलर की उड़ान आपके सामने है। बजट खसारा कोई 56 खरब का है, 5600 अरब जिसको बोलते हैं आप लोग। FVR की इनकम 4 साल के बाद 39 से मुश्किल से 56, 57 तक, 60 तक जाएगी। जबकि इमरान खान का जो पहला मंशूर था पहले साल का, उसमें 80 बिलियन 800 बिलियन का था, वो हम बामुश्किल 60 पे जा सकेंगे। बजट बनना कितना मुश्किल है, IMF से हमारा वायदा नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या रुकावट है वो हम जानेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी मईशत को सांस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी हम आज जानेंगे। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। डॉक्टर अयूब मेहर आपके प्रोफेसर हैं, हमारे मेज़बान भी हैं, इनके तावन का शुक्रिया, इकरा इंस्टीट्यूट इंसामिया का शुक्रिया, जिनके तावन से हम ये फ़ोरम इनकाद कर रहे हैं। कादिर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे चौथे पैनलिस्ट, आ जाइए सर वहाँ से। पाकिस्तान इनकम टैक्स बार के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हैं और सरबराह भी हैं। जी अयूब साहब, सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस वक्त आप, अगर मैं ये कहूँ कि 2-3 चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या दरपेश हैं, पाकिस्तान मईशत में कहाँ खड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये ले जी, आई थिंक प्रॉपर रिलेशन, ओके, थैंक यू वेरी मच। अकरम साहब देखें, इस बजट में दो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं बाकियों से। एक तो ये कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आपने भी हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे कि अभी एक्सटर्नल बोरोविंग का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें हम हिस्टोरिकली 10-20 साल से 3 डिकेड से फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा कंट्री को फेस करनी पड़ रही हैं। एटलीस्ट देयर आर 3 पॉइंट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो है ट्रेंड है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो 2018 में 3.9% था CPI की बेस पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेस पर, वो अब 13.4 हो चुका है। ये कंज्यूमर प्राइस बेस पर है जो मीडिया में रिपोर्ट होता है। इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये कि जो सेंसिटिव प्राइस की बेसिस पर SPI का हमारा इंडेक्स है, जो 12 कमोडिटीज़ पर होता है, जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ होती हैं, उस पर 2018 में SPI की बेस पर जो आम आदमी का इन्फ्लेशन रेट है वो 0.9% था, जो अब 17% से भी ज़्यादा हो चुका है। ये एक ख़तरनाक इंडिकेटर है। दूसरा, ये जो हम एक आमतौर पे आर्गूमेंट देते हैं कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, तो देखें ये जो 13.4% ही अगर मैं कहूँ 17% को छोड़ दूँ जो SPI का है, तो जो 13.4% हमारे यहाँ CPI, वो नेबर कंट्री में इंडिया में 7.8% है, बांग्लादेश में 6.3% है। ये एक ड्रास्टिक पिक्चर है जो ज़ाहिर प्रॉब्लम करेगी आने वाले बजट में। दूसरी कंट्रीज़ में जो इसके लिए एक हल निकाला जाता है, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो हम एक्चुअली इन्फ्लेशन को कम रखने की जब बात करते हैं तो हम कंज्यूमर्स को देख रहे होते हैं। इसकी एक दूसरी पार्टी भी है, प्रोड्यूसर्स की, ख़ासतौर पे SPI की मैं बात करूँगा, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में। जो प्रोड्यूसर है, अगर आप देखें साउथ पंजाब में या अपर सिंध की तरफ आप देखें, उस प्रोड्यूसर के क्या व्यूज़ हैं। बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं कि उन्होंने गंदम को आग लगा दी, उन्होंने सब्जियों को आग लगा दी, इसलिए कि उनका पॉइंट प्राइस कम करना नहीं है, उनका है कि उनकी कॉस्ट रिकवर हो, उनको कुछ रिटर्न मिले उस पर, और उनकी कॉस्ट रिकवर हो। दूसरी कंट्रीज़ में कैसे हो रही है, वहाँ सब्सिडीज़ का एक सिस्टम मौजूद है। सब्सिडीज़ का सिस्टम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें बांग्लादेश में 25% से ज़्यादा सब्सिडीज़ में जाता है बजट, इंडिया में 20% के करीब जाता है, पाकिस्तान में लेस देन 8% है, लेस देन 8% ऑलरेडी है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि IMF की जब हम कंडीशनलिटीज़ की बात करते हैं, तो IMF की कंडीशनलिटीज़ में जिस चीज़ पर जोर दिया जाता है वो सब्सिडीज़ कम करने पे दिया जाता है। सब्सिडीज़ कम करने का मतलब है मज़ीद इनकम्पिटिटिवनेस होगी और इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा। हमारा ज़्यादा जो, और दूसरा हम कट लगाते हैं सैलरीज़ पर, प्राइवेटाइजेशन कर दें, सैलरीज़ का बजट कम कर दें। वर्ल्ड में पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जहां सैलरीज़ पर जो टोटल बजट के एक्सपेंडिचर का स्पेंड होता है वो लेस देन 7% है। ये इंडिया में 9% है, बांग्लादेश में 25% है। IMF की कंडीशनलिटीज़ में ये दो कंडीशनलिटीज़ ज़्यादा हाईलाइट्स होती हैं कि सैलरीज़ का बजट कम करना है
दूसरा ये है कि सब्सिडीज़ को कम करना है। दोनों का इफेक्ट जो है वो यकीनन पब्लिक पे पड़ता है। ये हमें एक चीज़ जो है इसको देखना होगा। तरक्याती बजट को भी वो तरक्याती बजट तो ऑलरेडी इस दफा 93 के बाद एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ था जब मोइन कुरैशी साहब आए थे। उसके बाद से तरक्याती बजट, उससे पहले अगर आप निकालें 1947 से 93 तक का, तो 6-7% होता था, जो अब 2% से नीचे चला गया है। वो तो ऑलरेडी कट हो रहा है। लेकिन दूसरा चीज़, हमें जो खर्चा जो करना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पर हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा है। टोटल एक्सपेंडिचर का वो कोई 36% बन रहा है। और जो एक चेंज आई है इसमें, एक तो मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन में SPI बढ़ गया है कंज्यूमर प्राइस से। दूसरा एक चेंज ये आई है कि जो साबका गवर्नमेंट थी उसने 2.4 ट्रिलियन रुपीस डेफिसिट फाइनेंसिंग की थी डोमेस्टिक सोर्सेज से, जिसमें मैं नॉन बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, नॉन बैंकिंग, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बोरोविंग से। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट बोरोविंग थी। और जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि 36% टोटल बजट का सिर्फ इंटरेस्ट पे जाता है, इसमें रीपेमेंट शामिल नहीं है। वो 36% जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी वजह से अब सब्सिडीज़ पर IMF सही कहता है कि सब्सिडीज़ पे कट लगाएं, सैलरीज़ का बजट कम करें, वहाँ बजट कम करना पड़ता है। इसका कोई सोल्यूशन जो है हायर इंटरेस्ट पेमेंट का वो नहीं आ रहा, जबकि हमने एक्सटर्नल बोरोविंग की है। एक्सटर्नल बोरोविंग पे भी कुछ लोग एग्रीमेंट करते हैं, ये अक्सर डिबेट में आ रहा होता है कि USA की तो 100% ऑफ GDP से ज़्यादा है, टर्की की 85% ऑफ GDP से ज़्यादा है। देखिए एक चीज़ बड़ी अहम है, जो ये हम रेशो निकाल रहे होते हैं, जो रेशो हम निकालते हैं डेट टू GDP, जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट का ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। प्राइवेट सेक्टर ने बॉन्ड इशू किए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वही पेएबल, उसी के को पे करने वही रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारा एक्सटर्नल डेट जो है, ऑलमोस्ट सारा तमाम एक्सटर्नल डेट वो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है। वो पब्लिक को उसकी इंटरेस्ट कार्ड, उसकी रिपेमेंट जो है अल्टीमेटली GST पे आएंगे। आपने इन्फ्लेशन की बात की, बहुत ज़्यादा बुलंद है। अब IMF से जो कंडीशन पूरी हो रही हैं, आपने डॉलर के ये प्राइस पेट्रोल की बढ़ाई है और बिजली की बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में हम इससे अवॉइड कर सकते हैं, कोई रास्ता है? और या अगर यही करना पड़ा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए अगर ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ड्रास्टिक नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन, और ख़ासतौर पर मैं SPI से कंसर्न हूँ जो गरीब लोगों का इंडेक्स है, उसमें डेफिनेटली रास्ता है। रास्ते के लिए जब हम बात करने जाते हैं, अभी साबका गवर्नमेंट ने एक अपने फिगर्स में एक चीज़ को बहुत हाईलाइट किया था कि हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है। FBR बार बार कहता है टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है। जो 4 ट्रिलियन रुपीस थे वो 8 ट्रिलियन पे ले जाने का टारगेट था, 6 के करीब हम पहुंच चुके हैं। अब मसला ये है कि ये हम अगर इस तरह से करते हैं कि हमें अवॉइड करना है और कलेक्शन बढ़ानी है, उस कलेक्शन में मुझे याद है PTI के मंशूर का हिस्सा था, असद उमर साहब ने कहा था कि जब टैक्स बढ़ाएंगे तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मजीद बढ़ गए क्योंकि उनकी कलेक्शन आसान है। GST हम कलेक्ट कर लेते हैं, GST कलेक्ट करने का मतलब है प्राइजेज मजीद बढ़ जाती हैं। और ऐसे वक्त में टैक्स का अगर इसको पॉजिटिव इंडिकेटर लिया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन डबल हो गई है, तो जब GDP ग्रोथ रेट कम हो और इन्फ्लेशन हाई हो, महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हो जाए, तो उस वक्त मैं नहीं समझता कि टैक्स कलेक्शन जो है ये राइट इंडिकेटर है। उस वक्त टैक्स का कलेक्ट होने का मतलब क्या है? ज़्यादा टैक्स कलेक्ट, ऐसे वक्त में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होना जब इनकम कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो टैक्स कलेक्शन कहाँ से हुई है? साफ जाहिर है वो टैक्स कलेक्शन जो है फिर इनकम से अगर नहीं हुई तो वो जो हायर टैक्सेस हुए हैं वो सेविंग्स यूटिलाइज। हमारे पास ऐसा रास्ता है कि हम सब्सिडी दे सके पेट्रोल बिजली पर, और कोई और रास्ता हो IMF को मनाने का? देखिए हमारे पास डेफिनेटली टॉक हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, हुकूमतें करती रही हैं, बिल्कुल रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है। उसमें हमें पहले तौर पर इसको इमीडिएटली जो होगा शॉर्ट टर्म में तो रीशेड्यूलिंग की बात करनी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फिर जो फोकस है अपना, जब फोकस करना होगा, दूसरे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं जिस पर मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कैसर बंगाली साहब बात करेंगे, जहाँ हम कट कर सकते हैं। मैं कैसर को लूँगा, उसके बाद फिर कादिर हूँ। सर एक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। श्रीलंका की मिसाल सामने है हमारे। आप पहले तो इस खदशे को आप कैसे देखते हैं कि ये दुरुस्त है या कितना गलत है ये? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अकरम। बहुत एक अच्छा सिलसिला इन्होंने कई सालों से चलाया हुआ है और बहुत एजुकेटिव है। पूरा पेज डेडिकेट होता है वेरी सीरियस डिस्कशन। और दूसरी बात यह कि मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके, पहली दफ़ा मैं आया हूँ। मेरी सारी उम्र पढ़ाने में गुजरी है और
और जब भी कहीं स्टूडेंट्स के साथ बैठने का मौका मिलता है बड़ी खुशी होती है। सच अ प्लेजर टू सी सच ब्राइट यंग वाइब्रेंट फेसेस हियर। शुक्रिया। ये जब जंग फोरम यूनिवर्सिटी में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में ये भी कहूँ कि मेरा दिल चाहता है कि अच्छी बातें करूँ, गिव यू अ मैसेज ऑफ होप, क्योंकि आप यहाँ से निकलेंगे, अपनी नया करियर शुरू करेंगे, पूरी अगले 50 साल से ज़्यादा आपके पास है। लेकिन आज के जो हालात है, माज़रत के साथ, बहुत माज़रत के साथ मैं ये कर नहीं सकता। झूठ बोलने के बराबर होगा अगर मैं कहूँगा कि हालात ठीक हैं और ठीक हो जाएंगे। जो इस वक्त ख़बर है, अगर आप पढ़ते हैं अखबार, न्यूज़ बाकायदा सुनते हैं, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो उसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं बैंक के ज़रिए। वो एक टेक्निकल टर्म है जो डॉक्यूमेंटेशन है, एलसी कहलाती है। बैंक्स ने हमारा एलसी खोलने से इनकार कर रहे हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ ऑयल। ये बैंक्रप्सी की एक बिल्कुल वाज़ेह अलामत है। बैंक्रप्सी की जो वार्निंग है, हम कुछ लोग पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं, बल्कि 2 साल से पाकिस्तान टेक्निकली बैंक्रप्ट हो चुका है। बैंक्रप्सी की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं कर्ज़ा लूँ और वापस ना कर सकूँ तो मैं बैंक्रप्ट हूँ। पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से जितने कर्ज़े लेते हैं, हम सारे कर्ज़े, पुराने कर्ज़े वापस करने के लिए लेते हैं। $1 भी अब हम कर्ज़ा कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं लेते। ये अब हम सिर्फ कर्ज़े, तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो भी हो, और मैं यहाँ दिस और दैट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक फजूल बहस होगी। आजकल घरों में भी ये बहस हो रही है कि इमरान खान बेटर था, ये बेहतर है, क्या था। ये बिल्कुल बेकार बहस है। सब ने अपना हिस्सा डाला है पिछले 20 साल में, ख़ास तौर पे इस मुल्क की मईशत को तबाह करने में सब ने डाला है। तो कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, ख़राब है, इस बहस में पड़े ही ना। बात मुल्क की मईशत की है, मुल्क की सर्वाइवल की है। वी आर बैंकरप्ट। और जो बहरान हम सामने देख रहे हैं, चंद साल, चंद महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चंद हफ्तों की बात कर रहा हूँ। मुझे ख़तरा एक तो ये कि अगर तेल नहीं आया तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े जो घर हैं डिफेंस में, मैं भी डिफेंस में ही रहता हूँ, सब ड्राइववे में पजेरो और लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ खड़ी है, वो वहीं खड़ी हो जाएगी। सब घर के आगे गधा गाड़ी खड़ी होगी। चूँकि पेट्रोल ही नहीं होगा तो लोगों की गाड़ियाँ कहाँ से चलेगी। लेकिन जो आम लोगों को ख़तरा मैं देख रहा हूँ वो ये कि बहुत शदीद खुराक की किल्लत आने वाली है। वही चंद हफ्तों की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 5000 साल पुरानी सकाफत है हमारी। Indus Valley civilization was the bread basket of the world of Asia for 5,000 years. आज हम अपने आप को खुराक नहीं दे पाते हैं। हम पूरा गंदम नहीं उगाते हैं, हमें 2 से 3 से 4 मिलियन गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कहते हैं दाल रोटी गरीबों का खुराक है। 95% दाल हम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें नहीं ग्रो करते। कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल पूरा हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद नहीं ग्रो करते। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। आटा, दाल, कुकिंग ऑयल और प्याज। चीनी इतनी ज़रूरी नहीं है, चीनी के बगैर गुजारा कर सकते हैं, बल्कि चीनी कम पीनी चाहिए। चीनी
नहीं है, अच्छी है, लेकिन ये 4 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर खाना नहीं पक सकता। और ये इन 4 में से 3 चीज़ें गायब हो जाएगी मार्केट से, इसलिए कि इंपोर्ट बेस्ड है और डॉलर हमारे पास नहीं है। आज तेल इंपोर्ट करने के लिए एलसी नहीं खोल रहे, कल गंदम इंपोर्ट करने के लिए भी एलसी नहीं खोलेंगे बैंक्स वाले। तो बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा बहरान फूड शॉर्टेज का, मतलब इन्फ्लेशन तो छोड़ दें आप 3 गुना ज़्यादा कीमत देने को तैयार है, लेकिन है ही नहीं मार्केट में, मिल ही नहीं रहा। सर बुनियादी तौर पर हम एक ज़राई मुल्क हैं जी और थे। अब से 3 साल पहले तक हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे और शक्कर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, कपास भी एक्सपोर्ट करते थे इवन। तो ऐसा क्या आया कि आप हम तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। पिछले 40 साल से, स्पेसिफिकली 40 साल से हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, उसने जो प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, उसको नज़रअंदाज किया है और पिछले 20 साल में तो दानिस्ता तौर पे उसे कमज़ोर किया है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दानिस्ता तौर पे किया है। पाकिस्तान को एक कसिनो इकोनॉमी बना दी गई है। कसिनो इकोनॉमी से मतलब यहाँ लोग पैसे बनाते हैं सट्टेबाजी से, अशिया पैदा करके नहीं बनाते हैं। मेहनत, आप ज़राअत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, मेहनत करते हैं। ज़ुबैर साहब इंडस्ट्री में सुबह उठते हैं तो उनके जहन पे चीज़ें होती हैं कि आज फैक्ट्री में ये मसला है, वो माल पहुंचना है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन इस मुल्क में जो एक तबका है जो सट्टेबाजी से पैसे बनाता है, घर में बैठा है, 4 टेलीफोन है, स्टॉक मार्केट प्ले किया, प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट बेचे, ख़रीदे जो प्लॉट देखे ही नहीं कभी, और उससे पैसे बनाते हैं। तो हमने अपनी मईशत को तबाह किया है। हमने 70s में, द डेकेड ऑफ द 70s, पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का रेट ऑफ ग्रोथ था वो 21% पर एनम था इन रियल टर्म्स, यानी इन्फ्लेशन निकाल के 21% पर एनम ग्रोथ रेट था। 80s में इट ड्रॉप टू 2.7%। और अब तो इन्फ्लेशन, अब डेवलपमेंट बजट किसी नाम पे ही रह गया है। और इस वक्त आजकल तमाम प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक दी गई है, तमाम प्रोजेक्ट्स की। तो ये हमने तो इस तरह है कि ये इमारत है, इसको बना ली, इस पर कोई पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। कल बल्ब टूट गया, फिर कोई एयर कंडीशनिंग ख़राब हो गई, फिर कोई खिड़की टूट गई, पता चला कबूतरों ने अंदर दरबा बनाना शुरू कर दिया। इस कमरे का क्या हाल होगा अगर आप 2 साल इसको ऐसे ही छोड़ दें बगैर किसी रिपेयर के। मुल्क का यही हाल है। सर बजट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका? 10 जून का बजट है। बजट के चैलेंज के साथ मैं IMF की भी बात कर लूँ। IMF के 2 कंडीशंस होते हैं। एक ये कि आपका बजट डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए और एक ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए। हम जब नहीं मैनेज कर सकते तो IMF कंडीशन लगाती है, कसूर तो हमारा है। फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 200 रुपये से ज़्यादा है, डबल है। फॉर एवरी $100 ऑफ एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट $220 है। किसी ने तो ये खसारा देना है ना। हम अब तक सिर्फ कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं है एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की और कोई एफर्ट नहीं है इंपोर्ट्स को मैनेज करने की या एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। इंडस्ट्री हमने अंडरमाइन कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ज़ुबैर मोतीवाला साहब को, अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। मेरे अपने रिश्तेदार 4-5 हैं जो इंडस्ट्री बंद कर चुके हैं और वो या तो स्टॉक मार्केट खेलते हैं या प्रॉपर्टी मार्केट खेलते हैं और कहते हैं जी पहले ख्याल क्यों नहीं आया, अब हम ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। तो इंपोर्ट्स में आप देखें, हमने अपनी जो पावर प्रोडक्शन है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स हमने इसको बिल्कुल इंपोर्ट बेस कर दिया। अपना रॉ मटेरियल नहीं इस्तेमाल करते हैं।
अपना कोयला नहीं इस्तेमाल करेंगे, गैस इंपोर्ट करके बिजली बनाएंगे। पिछली हुकूमत ने, पिछली से मतलब जो पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 3 कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाए गए, तीनों इंपोर्टेड कोल पे। आपके पास 200 साल का कोयला पड़ा हुआ है, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक लॉबी पाकिस्तान में है जो इंपोर्ट लॉबी है, सर थैंक यू। वो आपको कर रहे हैं। तो अगले दफा में कादिर उनको ले लें। हाँ फिर जी 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 कादिर साहब, FBR की कारकर्दगी कहें या टैक्स जनरेशन कहें, पाकिस्तान का एक मसला है। हम ये ले लें, 4 बरस बाद हम 39 से 60 पे जा रहे हैं, 4 बरस बाद, लेकिन GDP से रेशो जो इनकम उसका है वो कम हुआ है। इसकी क्या वजह है कि हम एक तो तरफ तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा हम टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन GDP रेशो हमारा 11 से 9 पर तकरीबन आ चुका है। ये दूसरा, ये जो स्लेब्स की बात हो रही है कट करने की, वो उससे क्या इम्पेक्ट आएगा, और आपकी अपनी क्या तजवीज़ हैं? आप जो कि मुशीर हैं भी, शायद मेरे ख्याल में एडवाइज़र हैं इनका FBR के, तो आप क्या तजवीज़ दे के आ रहे हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो अकरम भाई आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से मुझे यहाँ मदू करने का। अमंग्स दो स्टॉलवर्ड सिटिंग एट दी हेड टेबल, कैसर बंगाली साहब, जुबैर मोतीवाला साहब, डॉक्टर साहब, and I could see all the stalwarts from the media also, you know, Riaz and a number of, and amongst the young and outstanding students in the future, I would rather call them always, when जब मैं पढ़ाता भी था तो मुझे young बच्चों को मैं कहता था, they are the future leaders. So I think, I always believe that they are the future leaders of the, देखें, ये हमारी जो कंपोजिशन है इकराम साहब ऑफ द टोटल GDP, वो इस तरह है कि हमारा जब भी कभी रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा टैक्स टू GDP रेशो नीचे जाएगा, क्योंकि हमारी इस वक्त जो कंपोजिशन है, अगर हम उसको देखें तो 69% हमारी जो कंपोजिशन है वो मैन्युफैक्चरिंग है। ऑलमोस्ट कोई मैं देखूं अगर तो 19% जो है वो एग्रीकल्चर है, एंड 42% रादर अदर सर्विसेज हैं, एंड द रिटेल एंड सेक्टर जो है अब तो वो बहुत ग्रो हो गया है, एंड इट हैज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट 19.5%। अब उस सारे सेक्टर्स में आप देखें कि अगर एग्रीकल्चर 19% है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.06% टूवर्ड्स द टैक्स। सिमिलरली अगर आप देखें रिटेल सेक्टर एंड होलसेल सेक्टर, तो वो 3.7 कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारा जो 69% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त हमारा 19% है, बट इट इज पेइंग टैक्स 69%, इट इज पेइंग 69%। सो अब हो ये रहा है कि जब तक हम रिटेल सेक्टर जो कि हमारा 19% है, और वो उसको जब तक हम ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर टैक्स जो GDP में उनका कंट्रीब्यूशन है उसको हम ऊपर नहीं लाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नीचे नहीं होगा और हमारा नहीं होगा। अच्छा, एग्रीकल्चर में तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो सूबे वसूल करते हैं, वो सूबे में तो कैपेसिटी नहीं है कि वो वसूल कर सकें। आई थिंक कैसर बंगाली साहब से ज़्यादा कौन इसको जानता होगा कि हमारी क्या कैपेसिटी है उसको वसूल करने की। तीसरी चीज़ जो हमारी है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो होगा ये कि जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, अब आप देखें मैन्युफैक्चरिंग से हम in the past few years we have converted into from the manufacturing sector to a trading sectors. So हो ये रहा है कि अब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होके अब वो ट्रेडिंग के अंदर चली गई हैं। तो इस तरह से हमारा जब तक कंपोजिशन, हमारी जो भी कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू देयर GDP में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, अगर वो उतना टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमारे रेवेन्यूज जितने भी बढ़ते चले जाएं वो हमारा टैक्स टू GDP हमेशा कम होगा। और चूंकि टैक्स टू GDP रेशो में प्रोविंसेस को भी शामिल किया जाता है, तो जब तक प्रोविंसेस की कलेक्शन, फॉर एग्जांपल आई वुड गिव अ वेरी, मतलब आप सबको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि SRB जो है वो माशाल्लाह अब नाउ इट इज़ कलेक्टिंग मोर देन 100 बिलियन, 100 बिलियन के करीब मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट
अब नेट 50। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये कैपेसिटी तो है, बट देयर नीड्स टू बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज, देयर नीड्स टू बी टू डू दैट। अच्छा, जो स्लेब की बात आप एक बात इससे पहले पूछता हूँ। एक बात ये कही जाती है, हुकूमत की तरफ से कही जाती है कि लोग टैक्स नहीं देते, तो ये इसमें क्या हकीकत है, और ये कि हम हमारे पास कितनी गुंजाइश है कि हम टैक्स अपना बढ़ा सकें? अच्छा देखें, टैक्स तो दुनिया में कहीं पे भी कोई आदमी भी, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें, कोई शख्स भी टैक्स देने को कभी भी तैयार नहीं होता, खुशी से कोई भी नहीं देता टैक्स। देयर आर डेटरेंस क्रिएट की जाती हैं, और वो डेटरेंस क्रिएट ये की जाती हैं कि आपके पास जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है ऑटोमेशन। आपकी ऑटोमेशन इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि आपके पास डेटा कलेक्ट हो, और उस डेटा कलेक्ट होने के पास आपको ये सरप्राइज़ होगा ये सुन के कि दुनिया की अब बहुत सारे ममालिक, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नंबर ऑफ कंट्रीज़ ने अब आपकी टैक्स की रिटर्न वो खुद बना के देते हैं आपको। आपने सिर्फ ये करना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। अगर आप उस पर्टिकुलर डेट तक वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो रिटर्न जो उन्होंने बना के दी आपको, वो रिटर्न इज़ कंसीडर्ड टू बी दी फाइनल। तो ये क्या वजह है? ये वजह है कि उनके पास इतनी इफेक्टिव है। अच्छा, दूसरा विल ऑफ गवर्नमेंट। जिस बंदे को पकड़ लिया कि उसने ये चोरी की है, चोरी तो पूरा मुल्क कर रहा होता है, पूरी दुनिया में कर रहा होता है, यू नो, लेकिन जिस बंदे को उन्होंने पकड़ लिया, डिस्पाइट ऑफ जो भी कास्ट हो, जो भी क्लाउड हो, जो भी उसके कनेक्शन हो, उसको सज़ा देते हैं। दे मेक इट अ पॉइंट कि जी इस शख्स को जब सज़ा दी जाएगी तो दैट विल क्रिएट अ डिटरेंस। तो दिस इज़ द पॉइंट। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मेरी अभी भी बिलीव ये है कि अगर हम अपनी 2 या 3 चीज़ें ठीक कर लें, एक डिस्टॉर्शन जो हमारे टैक्स में कहीं यानी सर्विस सेक्टर में आप देखें किसी से 3% टैक्स खा रहा है, किसी से 8% टैक्स काटा जा रहा है। हमने खुद डिस्टॉर्शन इतने क्रिएट खुद किए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि जब तक हम डिस्टॉर्शन, तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट वजह हैं। एक है ऑटोमेशन, एक है विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। रिटेलर के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट की प्योर विल शामिल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई वजह नहीं है जो रिटेल सेक्टर से या होलसेल सेक्टर से टैक्स कलेक्ट ना किया जा सके। और ये कोई वजह नहीं है कि अगर हम ऑटोमेशन को अगर हम इफ़ेक्टिव कर लें। और आपको अकरम साहब ये बात सबको बरमला पता है कि जो फर्स्ट टैक्स रिफॉर्म शुरू हुआ था तो उसमें 67% वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ ऑटोमेशन के लिए पैसे दिए थे। सिर्फ सारे पैसे जो का टोटल जो 67% था, दैट वाज टुवर्ड्स दी ऑटोमेशन। क्योंकि ये दुनिया में ये बिलीव किया जाता है कि अगर ऑटोमेशन होगी, डेटा बैंक आपके पास होगी, आप सारे इफेक्टिव उसको कर सकते हैं। दूसरा, आपने स्लेब की बात की। सर मेरा अगर मुझसे अगर आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डिस्टॉर्शंस हैं, लीकेजेस हैं, अगर उसी को इकट्ठा किया जाए तो कम से कम हम कहीं पर भी 8 ट्रिलियन से कम हमारी कैपेसिटी है कि हम 8 ट्रिलियन जो है बहुत क्विकली कर सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जो हमें जो स्टेप्स लेने चाहिए, जो अभी केसर बंगाली साहब ने भी कहा, जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेप्स नहीं लेंगे, हमारा ये जो पोटेंशियल है वो निकल के नहीं आ सकता। अगर स्लेब्स का मैं आपको बता दूं, देखिए स्लेब्स का ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स के स्लेब हैं 11। दुनिया जो है वो 6 स्लेब पे चली गई है। अच्छा, उस 6 स्लेब में क्या है, जैसे अभी बात की गई कि 6 स्लेब में ये है कि जो हायर ब्रैकेट ऑफ द टैक्स होता है, क्योंकि देखें जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा कलेक्शन नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में गरीब आदमी को मारते चले जाएंगे। इस वक्त 63% इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया कंपेयर टू दी डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे, और दुनिया जो है इस वक्त स्लेब्स में, यानी वो ये बिलीव करती है कि रिचेस्ट हैव टू पे हाई, यू नो। ये निशानदेही कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में हम कहाँ पे लैप्स करते हैं, कौन सेक्टर बाहर है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो कि इकोनॉमिक की जो सबसे प्राइम वो है कि richest has to pay higher tax and the poor has to pay a lower tax. That is, हर स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या मुझ जैसा जो नाहिल जिसने कुछ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, तो वो उसको इस बात का पता है कि जब जो भी अमीर आदमी होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना है। और दूसरा वेलफेयर के काम, आपको मैं अगर 1 मिनट आपका मैं लूँगा, आप देखें जब पाकिस्तान बना था
तो जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती थी उस इंडस्ट्री के साथ कॉलोनी भी होती थी, उसके साथ हॉस्पिटल भी होती थी, विद इन दैट होती थी। हम जैप्टन की मिसाल ले लें, हम वलीका की मिसाल ले लें, यू नो। तो वेलफेयर जो है वो उसकी चूँकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है तो उसको करना ज़रूरी होता है। तो स्लैब में मैं अगर आपको बताऊं तो देखें, इस वक्त टर्की के अंदर 5 स्लैब्स हैं, वियतनाम में 7 हैं, इजिप्ट में 7 स्लैब्स हैं, चाइना में 7 स्लैब्स हैं, इंडिया में 7 स्लैब्स हैं और हमारे पास 11 स्लैब्स हैं। अगर हम उन स्लैब्स को नीचे करेंगे तो जो IMF कह रहा है वो एक डिफरेंट बात कर रहा है, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये है कि आप नीचे वालों को भी टैक्स का वो करें, बट आई थिंक जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंसीडर्ड दैट प्रपोजल एंड आई थिंक ये स्लैब्स कम ज़रूर होंगे बट पुअर विल नॉट बी हिट थ्रू दैट। थैंक यू जी। ज़ुबैर मोती साहब, ज़ुबैर मोती वाला एक बोल्ड आवाज़ है इकनॉमिक्स की। हर दौर के अंदर ये मैंने बहुत कम इंडस्ट्रीज़ को देखा है जो अपना मौक़िफ़ को बहुत बोल्डनेस अंदाज में पेश करते हों, वरना सनतकार जो है वो शिकायत तो करता है, बोलता नहीं है। तो ये वो आवाज़ है, मुझे खुशी है कि हमारे फोरम मौजूद हैं। अभी ये मुलाकात करके इस्लामाबाद से आज ही आए, कल आएँ? कल आए। तो वो भी ज़रा बताएं कि क्या होने जा रहा है बजट में। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया। इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ बैठे हैं, बाकी सारे खेल रहे हैं, उनको यहाँ जो बैठे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आए तो सही, कुछ समझना तो है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो मैं तो सर वहाँ जो इस्लामाबाद में जो हाल है वो अफरा तफरी का हाल है। वहाँ जो है ना एकदम लोग परेशान हैं। वज़ीर ख़जाना सबसे ज़्यादा परेशान है कि जी पता नहीं मैं कैसे चलाऊँगा, कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, देना कहाँ से। यहाँ तक हो गया कि CPEC के अंदर हमारी जो अब रीपेमेंट्स आ गई हैं, वो पेमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ प्रोमिसेस भी किए हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि वो पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो जैसे कैसर साहब ने कहा, हम तो ये हमारे उस्ताद हैं, हम इनसे सीखते हैं बहुत। तो जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह का हाल है मुल्क का कि जो है ना वो क्या होगा। लेकिन मैं एक पुरुमीद हूँ मैं इस मुल्क से हमेशा, आज से नहीं, सालों के साल हो गए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बैंकरप्ट कभी भी नहीं होगा। हम श्रीलंका नहीं हैं, हम 2 करोड़ 20 लाख का मुल्क नहीं है, हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम न्यूक्लियर पावर हैं और लोगों को हमारी जोग्राफिकल कंडीशन का भी पता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी एग्रीकल्चर बेस है। एग्रीकल्चर के अंदर हम ज़रूर प्रोडक्शन हमारे कम हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा हमारी आबादी बढ़ी है। हमारी जो पब्लिक का जो जितनी बढ़ी है उसके हिसाब से हमारी जो अजनास हैं वो बढ़ी नहीं। फिर आप देखें कॉटन, आप कहेंगे 13 मिलियन बेल होती थी, अब 7 हो गई। तो गन्ने ने उसको, शुगर के अंदर ज़्यादा पेमेंट थी तो शुगर के ऊपर चले गए। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अगर आप कहें मुल्क में क्या है, बजट के हवाले से क्या है, इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे पास जितने देने के हैं उतने लेने के नहीं हैं। तो क्या अगले सालों में हो जाएंगे? तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि 2019 में हमारा इंपोर्ट जो 50.1 बिलियन था, उसके बाद 2021 में ये 56 बिलियन हो गया। और इस साल चूंकि ब्रेंट की प्राइस 100 से ऊपर चली गई तो आज इस दफ़ा हमारा हम क्लोज करेंगे कोई 80 बिलियन के करीब या 78 बिलियन के करीब। ये इतना बड़ा डेफिसिट है। उसके अगेंस्ट में आप देखें हमने बहुत ग्रो किया, टैक्स कलेक्शन में ग्रो किया, सब कुछ किया हमने। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किया इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री का। 8 बिलियन को हम क्रॉस कर जाएंगे, 8 ट्रिलियन को। तो लेकिन सामने हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, 26% एक्सपोर्ट बढ़ा, तकरीबन कुछ 6 ट्रिलियन हो गया। और इसके बाद उसको हमने 5.8 था, इसकी जगह पे हम 6 को भी क्रॉस करेंगे, उसको ज़्यादा करेंगे, 8 नहीं 6। और उन्होंने कहा ना 10, तो मैंने बोला 8 ही ठीक रहता है। तो जो ना ये, अब आप मुझे बताएं, किसी पान वाले की दुकान भी इस तरह से नहीं चल सकती कि आपके पास 78 रुपये आपको देने हैं और आपके पास 60 रुपये आ रहे हैं। 30-31 हमारे होम रेमिटेंसेज हैं और 30-32 जो है ना हमारा एक्सपोर्ट होगा इस साल, वो भी 26% बढ़ने के बाद। तो अब क्या करें हम? हमारे पास इसका सवाल ये कि हम करें क्या? हमारे पास ये क्या और FBR जो ये बोल रहा है कि हमने टैक्स कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, क्या ये सच बात है? ये जो ना लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। तो मैं आपको उसका तरीका बिल्कुल साफ है, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा नहीं है, टैक्स कलेक्शन अभी भी कम है। क्योंकि जो आपका टैक्स कलेक्शन 86% है वो एट सोर्स है, वो कस्टम स्टेज पे जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसको पूरा लेकर उसको आप कर लेते हैं। अब एक आदमी 175 रुपये का डॉलर था तो माल इंपोर्ट करता था,
आप समझ ले उसको $1 की कोई चीज़ है तो ₹17.5 उसको टैक्स, अगर हम 10% गिन ले हाइपोथेटिकली, वैसे 40% इंसिडेंस होता है, बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन 10% अगर आप गिन लें तो ₹17.5 उसको टैक्स देना पड़ता था। अब वही डॉलर ₹200 का हो गया तो उसको टैक्स देना पड़ता है ₹20। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ₹2.5 FBR किस चीज़ के बना रहा है। यानी इन्फ्लेशन को कर्ब करने की बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए कि कम से कम आप प्राइजेस फ्रीज कर दो, HS कोड कर दो, या उसी रेशियो से ड्यूटी कम कर दो। आप जो महंगाई हो रही है उसमें 10% हिस्सा गवर्नमेंट का भी है। FBR ने जो ना 10% टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया, वो टैक्स नहीं था उनका। उन्होंने जो बजट के अंदर जो रिफ्लेक्ट किया था वो पिछले साल के बजट में, कैसर साहब को ज्यादा पता होगा, लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से 172 रुपीज का जो है ना डॉलर लिया था। आज डॉलर जहां पहुंच गया उसके हिसाब से उनके जो है ना वो कलेक्शंस बढ़ गए। तो ये एक आर्टिफिशियल जो है ना ये जो 6 ट्रिलियन क्रॉस करेगा, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, और ये होगा नहीं। हमारी इंपोर्ट जो है ना उसकी हमारी इंपोर्ट बतदरीज बढ़ रही है। और दूसरी बात बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है? इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं कोई एक प्लांट लेके आता हूं जिसके अंदर अगर 1000 आदमी काम करता है, उसके अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ गैस है, सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर मैं कोई बहुत ही गलत पागल किस्म का हूं तो मैं शायद 1050 में चलाऊंगा, और जो मैं क्वांटिटी गैस की चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा चलाऊंगा। लेकिन गैस और इलेक्ट्रिक के बगैर, पानी के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जब उसके अंदर हर वक्त प्रॉब्लम होगा आपको, और आप गैस की प्राइस अभी क्या कह रहे हैं 30 से 40% बढ़ जाएगी। अभी मैं इस्लामाबाद गया, मैंने उनसे नेगोशिएशन किया, बोले RLNG हम $11 में देंगे। किसको? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को। अगर $11 में अगर आप RLNG देंगे तो चल ही नहीं सकता। आज $6.5 है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब डबल करनी है आपको प्राइस। तो कहां मैं इसको माल को बेचने जाऊंगा? ना मुझे डॉलर में इतना इजाफा मिला है, ना किसी और चीज में इतना इजाफा मिला है। तो जितनी पॉलिसीज है वो ठीक नहीं है। अगर आपने इसको चलाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, अगर नहीं बढ़ाया तो ये जितने लोग आप ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं कहां लगेंगे? गवर्नमेंट के पास कोई मुलाजिमतें नहीं है। गवर्नमेंट के पास प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम हैं तो हमने मुलाजिमत, मैं कहां से दूंगा? मैं अपने पोर्शन की भी अभी बात करता हूं, जो कैसर साहब ने बात की, मैं यूनिट चला रहा हूं लेकिन उसका एक पोर्शन मैंने काटा, उसको किराए पे दे दिया मैंने खुद। तो अगर आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? अगर ये इस तरह से होगा तो आर वी गोइंग टू कर्टेल द एम्प्लॉयमेंट और वी वांट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट? दूसरी बात ये है सर कि अगर हम आज की जब भी बात करते हैं हम कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो ये कहता हूं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, गैस क्वांटम जितनी चाहिए उतनी नहीं देंगे। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, ये 300 ऐसे यूनिट है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए टर्फ की, जो 1% इंटरेस्ट रेट था, फिर बैंक का स्प्रेड लगा लें तो कोई 2.5-3% बन जाता है, विच वॉज वेरी वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। उसके ऊपर उन्होंने मशीनें मंगाने की इजाजत दी, वो मशीनें आई, बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज नहीं था। मैं बोल बोल के थक गया, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बोला, मैंने दिस इज नॉट अ कंप्लीट पैकेज। अगर कोई मशीनें आप मंगा रही हैं ड्राइंग रूम में नहीं रखी जाती, इसको हमने चलाना है, इससे प्रोडक्शन करना है। ये जो 26% आपको एक्सपोर्ट ज्यादा दिखाते हैं और गैस का कंजप्शन अगर कम दिखाते हैं, उसकी वजह है कि एफिशिएंट मशीनें आई और उन्होंने अनएफिशिएंट मशीन को रिप्लेस किया। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ 4 नवंबर से कराची के अंदर गैस की वजह से इंडस्ट्री डिस्टर्ब है, कभी बंद हो जाती है, कभी आती है। तो इस तरह से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि इस बजट के हवाले से मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। देखिए, एक बात तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने जो है ना पड़ोसियों को भी खाना भेजना है, रिश्तेदारों को भी पैसे देने हैं, उनको भी कपड़े भेजने हैं। हमारा ये हाल है जो एक घर में जो इस तरह से होता है, देखम दाखी में जो चल रहा होता है। मैं ये कहता हूं आपने क्या मेजर्स लिए? आपने अगर आपने बजट, आपके पास पैसे नहीं तो क्या किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी को, जो गाड़ियां उनके पास होती हैं जो कि हजारों की तादाद में हैं, उसके ऊपर फिक्स पेट्रोल दिया जाता है। किसी को 300 लीटर है, किसी को 150 लीटर है। जब मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था तो 600 लीटर का वो देते थे, मैं जिंदगी भर कभी खर्च नहीं कर सका वो, तो जो ना वो 200-250 लीटर, लेकिन वो मिलता था। मैंने उनसे कहा कि आप फौरी तौर पर इसको 50% कर दो, कि भाई अपना कर्टेलमेंट करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने, अगर आप पेट्रोल $125 का हो गया है तो आपने क्या करना है? आप इसको अब रोकेंगे कैसे? फिर मैंने कहा इसको ऑड नंबर, इवन नंबर की गाड़ियां, दुनिया में ऐसा होता है कि आप एक दिन इवन नंबर, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां रोड पे आएंगी। आपका जो है ना पेट्रोल का, जब तक आप बिल कम नहीं करेंगे, कंजप्शन कम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आपने गैस को कंजप्शन कम करना है, क्योंकि आप RLNG इंपोर्ट कर रहे हैं जो $30 की है। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको सोलर के ऊपर सब्सिडाइज जो है ना
इक्विटी, आपने जो आप उसके ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं उसके ऊपर आपको देनी चाहिए, उसकी इंपोर्ट के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। आपकी जब अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जब तक आप कम से कम 30 से 35% कम नहीं करेंगे, आपका कभी भी आरएलएनजी के अंदर आप कभी भी नहीं बैठेंगे। कल केई की आज ऐड जो आई है, उन्होंने केई वालों ने दिलवाई है कि हमारे को 4773 की मिलेगी और 17 रुपए अगले महीने से हम दाम बढ़ाने मजबूर होंगे। क्या ना कोई हाउस होल्ड ना कोई इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, ना उससे वो बर्दाश्त कर सकती है, ना वो चल सकता। तो अगर हम इन सारी बातों को अगर देखें तो सोल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको आपको फौरी तौर पर नीचे ले जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट आपने 0.15% काइबोर, कैसे चल सकता है 17% के अंदर कोई कारोबार? नहीं चल सकता। आपको इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया वो गलत किया। गैस के रेट्स को आपको नीचे लाना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा अगर हमने इंसेंटिवाइज करना है। नीचे क्यों मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं जी टेक्सटाइल में आपने क्या किया, हमसे कहती गवर्नमेंट यार बांग्लादेश को देखो कब आया और उन्होंने 4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लिया टेक्सटाइल के अंदर, आप अभी 2 बिलियन आपने पहुंचे हैं। हमने बोला 2 बिलियन भी हम पहुंच गए, हम मुजाहिदीन है जो हम ये पहुंचे हैं। आपका जो काम है वो आपने रोकना है इसको। मुझे बांग्लादेश की जो रेट है गैस का उसका रेट दे दो, मुझे इंटरनेशनल डॉलर करेंसी में दे दो। वो हमसे कह रहे हैं हम रेट डबल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी हर दफा फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज आता है और उसके साथ आप जो है 6 रुपए और 7 रुपए बढ़ा, ये नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर यू हैव टू टेक अर्जेंट स्टेप्स। अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रास्ता क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने का? आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट को कम करना है, यही रास्ता है ना, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इंपोर्ट को कम करने का तरीका क्या है? आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, उसकी एक्सपेंशन के अंदर पार्ट प्ले करना है, उसके रॉ मटेरियल को आपने किसी तरह से भी विदाउट फ्रंट लोडिंग आपने उनको आने देना है। इंपोर्ट सब्सिडी, मैंने एक दफा रजाक दाऊद साहब जा रहे थे चाइना, मुझे पूछा क्या करें, मैंने एक काम कर दें, जब आप चाइना जा रहे हैं, जब उनसे आपसी बात हो, हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, उनसे कहें कि कोई ऐसी आइटम जो $2 बिलियन या उससे ज्यादा की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो इसका मतलब पाकिस्तान में $2 बिलियन की मार्केट है ना, तो उसको जो है ना आप जब वो इंपोर्ट करता है आप उसकी जॉइंट वेंचर हमें दे दें, वो उस फैक्ट्री को यहाँ आ जाए तो रीजनल एक्सपोर्ट भी आपको मिलेगा और ये हो जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट का बिल कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हम आगे चलेंगे। तो उस तरह से बगैर कैसे होगा काम? ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आप दूसरा ऑल्टरनेट एनर्जी को आपने जरूर सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। विंड, उसका क्यों फ्रंट टैरिफ नहीं है? अब फ्रंट टैरिफ होना चाहिए उसका। मैंने लगानी है, मैं लगाऊं, व्हीलिंग करके मैं अपनी फैक्ट्री में लेके चले जाऊं, वो जंपीर में लगती है। वो आप विंड एंड सोलर इज द आंसर। तीसरा जो है ना सबसे बड़ा है कोल, जो हमारा थर कोल है, it is good for 200 years to produce 300,000 megawatts of power. We can be regional power hub अगर हम सिर्फ इसको देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में हुआ, कैसर साहब भी थे, अपने जो ने ये 2 कोल के प्लांट जो चल रहे हैं 660 मेगावाट के, मैं आपको बताऊं पूरा पाकिस्तान जो इससे रिलेटेड है उसने मेरी ओपोजिशन की। पागल हो गए, ये तो सल्फर है, ये तो चल ही नहीं सकता, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो थर का कोल बेकार है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि यार मुझे कुछ पैसे दें, मैं इसको जर्मनी और चाइना भेजता हूं, वह मंगोलियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल साइंसेज है, मैंने उसको वहां भेजा। एंड यू विल बी सरप्राइज कि क्या इस मुल्क में चल रहा है। वो कहते जी जो ऑयल इंपोर्ट लॉबी है वो आपको करने नहीं देगी। वो फिर एक ने मुझे कहा कि प्रेसिडेंट से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी तक जैसे तनख्वाह आती है ऐसे पैसे हमारे को आते हैं, आप इसको छोड़ दें। प्लानिंग कमीशन ने कहा इसको छोड़ दें, मैंने बोला मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सलाम राजा परवेज, उसके मेरे पुराने ताल्लुकात थे, जो फेडरल मिनिस्टर बना तो हमने उसके बाद वहां जाके हमने उसको अपफ्रंट टैरिफ तय करवाया और आज 660 मेगावाट ग्रिड के ऊपर थर से जा रहा है। 2 और प्लांट्स आ रहे हैं। हमारा आंसर है कोल, थर कोल और आपका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी। हम इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है और हमने किसी सूरत में भी अनप्लेजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स जो ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं है, वो स्टेप्स जो पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एक मिनट जी। मैं कहता हूं टैक्स क्या चीज है? टैक्स मेरी इनकम के ऊपर है। एक मिनट सबर कर। टैक्स किस पे है? इनकम पे टैक्स है। मैं ये कहता ही नहीं हूं कि एग्रीकल्चर पे जमीन पे टैक्स लगा दो, मैं ये कहता ही नहीं हूं कि क्रॉप पे टैक्स लगाओ। मैंने बोला जो आपने क्रॉप निकाला उसके अंदर यूरिया का खर्चा आया, चलाने का खर्चा आया, जो भी खर्चा है आपने खर्च लिया। इसके बाद जो इनकम आपने दी उसको आप लॉ ऑफ द लैंड है कि उसकी मैं टैक्स भरूंगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स है। इनकम हुई तो इनकम टैक्स है। आप क्यों आज जजिया और उशर की बात करते हैं? क्यों एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है? ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जितनी चीजें हैं आपको नजर आती हैं, जो कैसर साहब कह रहे थे कि मर्सिडीजें खड़ी हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो जी एग्रीकल्चर इनकम है, वो जी पोल्ट्री की इनकम है। ये सारा जो है ना ये माशरे को पूरी तरीके से ओवरऑल करके उसको देखना पड़ेगा। अरे अगर आपको और कोई सवाल है तो मुझे आप बताएं, लेकिन इस जब तक आप रॉ मटेरियल को
एट दी कॉस्ट प्राइस आने नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे और उसको चलाएंगे नहीं, उसको प्रमोट नहीं करेंगे। ये बजट डेफिसिट्स की हम बातें करते रहेंगे, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा उसकी बातें कर लेंगे। और आखिर में एक पंच लाइन मेरी ये है कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल थ्रू इट्स ओन रिसोर्सेज, जब हम आज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम कन्वर्ट करके वैल्यू एडेड आइटम्स में करें, इट इज नॉट लेस देन $100 बिलियन। हम, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट, ये हमको इसी तरह की फकीरी में रखना चाहते हैं। हमें IMF की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम जो है ना ये ड्रास्टिक स्टेप्स लें। अरे आप लोग तालियों में 10 सेकंड ले जाते हो मेरा, अपना टाइम दे जाते हो। फोरम को ओपन करेंगे, काफ़ी बातें यहाँ से हो गई, मोर 15 to 20 मिनट्स का बाकी है, तो ज़्यादा सबसे सवाल नहीं हो सकेंगे। अपना नाम पहले रिकॉर्ड कराइएगा और आपके पास 30 सेकंड होगा सवाल करने का। प्लीज़ डिसिप्लिन, 30 सेकंड सिर्फ सवाल करेंगे, कोई अपना कोई तज्जिया करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, ये मुझे एक चाहिए होगा मुजाहिद कोई। अभी बैठ जाए, अभी थोड़ी सी ज़्यादा तवील फोरम नहीं होता ये हमारा, टीवी की तरह 1 घंटे का होता है बस। कितना बोला जी? कौन है पहले? इधर दे दें, इधर जहाँ जो हाथ खड़ा करें अपना, मुझे अंदाज़ा हो जाए कितने लोग हैं। 1 2 3 4, बस ठीक, इतने ही चाहिए। ठीक है बेटा, पहले नाम बताओ अपना, सवाल 30 सेकंड। Assalamu alaikum. My name is Abu Rara and I'm a student of Introduction to Business Finance. Sir, I'm having a 2 or 3 questions. के सबसे पहला क्वेश्चन एक सवाल सर within 30 जल्दी कर seconds. लो, एक सवाल बस। सर, when we are talking about the budget, तो सबसे पहले तो अभी आर्मी ने जो मतलब यूक्रेन उसके लिए यूक्रेन के लिए जो मतलब सप्लाईज भेजी, एंड द अदर थिंग इज दैट कि हमने जो इंपोर्ट करवाई सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेस्ट वगैरह को रोकने के लिए, आंसू गैस बम वगैरह की, विच इज़ अराउंड 13 करोड़। इसके बाद तीसरी चीज़ ये आती है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल पर्सनस और द बिजनेस पर्सन, कि भाई जो लोकल बंदा कमा रहा है और जो बिजनेस पर्सन कमा रहा है, जो अमीर से अमीर है, दे आर विलिंग टू पे एंड दे आर एबल टू पे, जो कि कम सैलरी पर है, जो कि नहीं कमा सक रहा, वो कहाँ से टैक्स पे करेगा? ठीक है, थैंक यू जी। बस सवाल नहीं जी, अयूब सवाल अच्छा नहीं, सवाल अच्छा नहीं, बैठ जाइए आप। देखिए ऑन है, आ रही है आवाज़? ठीक तेज तेज। देखिए मेरा ख्याल है जुबैर साहब ने बिल्कुल पंच लाइन आपका जवाब ऑलरेडी दे दिया था कि हमें जब डेफिसिट कम करना है, एक्सटर्नल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, तो अननेसेसरी इंपोर्ट्स पर तो गवर्नमेंट की खुद भी पॉलिसी ये है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने एग्जांपल दिया उसमें क्वांटम बहुत छोटा नेग्लिजिबल है। हम अब चाह रहे हैं कि जो बड़े आइटम्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। ठीक है, नहीं होनी चाहिए इंपोर्ट, लेकिन इसका क्वांटम बेटा बहुत छोटा है, तो वो एक नेग्लिजिबल उसका फिगर है। कोई बजट के हिसाब से $1 बिलियन की जहाँ बात हो रही हो, वहाँ इतना बड़ा क्वांटम नहीं। जी नेक्स्ट कौन है? जी बेटा, नाम पहले अपना। तलहस फंदियार मेरा नाम है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसमें और भी गुजारिश कर रहा था कि मैं एक्चुअली ये जो कॉस्मेटिक्स चेंज है ना, यही बेसिकली जो है ना ये पाकिस्तान के लिए डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। ये दीज आर अच्छा भी यूँ रोक लो, अच्छा भी यूँ कर लो, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आप यू विल नॉट बिलीव इट, there is a billions of money which has been due to the distortions is the leakages, you know. और ये आप देखें कि पहले दिन अनाउंस किया कि जी इस पे पाबंदी लगा दें, फिर उसमें से वो निकाल दिया गया, एनर्जी को निकाल दिया गया, फिर रॉ मटेरियल को निकाल दिया गया। तो इट मीन्स दैट शोज़ कि हमारी पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे नहीं होती। हमारी पॉलिसीज़ होती है अच्छा इसको रोक लो, अभी इसको यूँ कर लो। आई थिंक दैट। जी बेटा, सवाल 30 सेकंड। जी मेरा नाम तलहस फंदियार है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपने कहा कि आज हम हारे हुए चेहरे के साथ ये बोल रहे हैं कि हम बैंक करप्ट होते जा रहे हैं, तो ये कि आप सब्सिडी नहीं दी जा रही, बट आप 28 अरब रुपए की सब्सिडी भी देते हैं, देन आप अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाते, महंगे रिसोर्सेज से आप पेट्रोल भी खरीद रहे हैं, जबकि रशिया का मुआहदा भी आप कैंसिल कर देते हैं गैस एंड पेट्रोल का।
तो हमारे इकोनॉमिस्ट फेल क्यों हो रहे हैं इतने सालों से इकोनॉमी को मेंटेन करने में, और एफबीआर क्यों टैक्स कलेक्शन सही से नहीं कर पा, जैसे इन्होंने बताया। शुक्रिया, थैंक यू बेटा। लेकिन आपको ये किसने कहा कि रशिया से कोई मुआहदा था और कैंसिल हुआ है? जी जी सर, कौन जवाब देगा? जी, रशिया से कोई मुआहदा नहीं था, कैंसिल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए, ये बात जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने बहुत सही, मैं हर चीज़ इनकी सेकंड करता हूँ। टैक्स, मेरा अपना ये है कि ये मईशत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, प्रोडक्टिव साइड ऑफ द इकॉनमी इज़ वेरी वीक, इसमें गुंजाइश नहीं है टैक्स जमा करने की, टैक्स जनरेट करने की। टैक्स को पीटना छोड़ दें, और जो टैक्स में इजाफा होता है, जो एफबीआर अपने आप को शाबाशी देती है, 2/3 ऑफ दैट इंक्रीज इज़ ऑन इम्पोर्ट्स। यानी आप जितना टैक्स जमा करते हैं और आपने आपको कहते हैं बड़ा कारनामा कर लिया, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और आपको मज़ीद जाके भीख मांगने पड़ते हैं दूसरों से। तो ये जो इजाफा है, एक तो इन्होंने बताया कि डॉलर की रेट की वजह से आपका बढ़ रहा है, दूसरा ये कि इंपोर्ट की वजह से बढ़ रहा है, तो इसको कम करना। बात ये, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब तक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, 100 रुपये का रेवेन्यू पे 200 रुपये आप खर्च कर ही नहीं सकते। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का है। अब ये वक्त आ गया है कि हम डिफेंस की बात करें और मुतालबा करें कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। इसके अलावा ये मईशत कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। जी बेटा, कौन है इधर और कहाँ है? हाँ जी, हाँ। Assalamu alaikum everyone. Naam First of all, my name is Dr. Asad Alirin. I am here a faculty member teaching finance. So first of all, thank you very much for coming to Iqra University. आप उर्दू बोल सकते हैं, जंग अखबार का ही जी जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ आए और इनलाइटन किया हमारे बच्चों को अबाउट बजट। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने तमाम मेंबरान ने ये बताया कि वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट फेसेस एंड लाइकली बिकॉज ऑफ IMF कंडीशंस, IMF की कंडीशंस की वजह से। सो कैसे इसको अवॉइड किया जाए, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है, वी हैव चैलेंजेस। IMF को कैसे मुंह देना चाहिए बेसिकली? क्या हम उनकी पॉलिसीज से डेविएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? थैंक यू। ओके, सवाल हो गया जी सर। देखें, IMF जो है ना, आप इसको छोड़ दें IMF को, आप यहाँ हबीब बैंक से अपने लिए लोन लेने जाएं, वो कहेंगे मैं स्टेशनरी की दुकान खोल रहा हूँ, वो आपसे मांगेंगे फिजिबिलिटी वाइबिलिटी कि आपकी इनकम क्या होगी और आप मुझे कैसे रीपेमेंट करेंगे। वो जब आपकी इनकम को देखेंगे, आपकी इनकम 10% है और आपका घर का खर्चा 15% है, वो बोलेगा भाई मुझे लोन नहीं देनी। उसकी बैंकिंग इस्तिलाह में उसको कहते हैं एबिलिटी टू पे। तो IMF भी एबिलिटी टू पे देख रहा है पाकिस्तान की। अब वो अगर आप एबिलिटी टू पे की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके, मेरा रिसोर्स ये है कि मेरी बुकें बिक जाएं, अगर स्टेशनरी है, पान की दुकान है तो पान बिक जाए। वहाँ यही है कि हम हमारी इसी रिसोर्स सोर्स क्या है, हमारी सोर्स गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, यहीं से तो हम पैसे बनाएंगे ना, जो एक्स्ट्रा पैसे हमको चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि गैस के रेट बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाओ, टैक्स रेट बढ़ाओ, कंपल्शन बढ़ाओ, कंप्लायंस बढ़ाओ, ऑटोमेशन करो। ये सारी चीज़ें एबिलिटी टू पे क्रिएट करने के लिए हैं और हमने वो कर्जा लिया हुआ है और उसको हमको वापस करना है। कैसे साहब ने आपको बताया कि हमने पिछले कई सालों से डेट रिटायरमेंट की है कर्जा लेके, इंटरेस्ट पेमेंट की है कर्जा लेके। तो जब इस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो अब सारी कौम को मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली ट्रीट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो मेजर्स हम कहते हैं वो कर देना एक दफ़ा। ये इन्होंने 75 साल देख लिया ना, एक दफ़ा हमको हमारे बोलने पर कर दें कि अब हम ये करें, हमको ये कर दो। हम आपको कहते हैं कि ये जो है ना एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा, मानो ना, हमारी बात तो मानो ना, कभी कैसे होगा। आप अगर यहाँ मुझे देते, अब ये जो कह रहे हैं महंगाई हो गई, फलाना हो गया, गरीब आदमी मर गया, मैंने उनसे अभी इस्लामाबाद में कहा, मैंने एक काम करें, देखें आपका किराए बढ़ जाएंगे तो सब्जी बढ़ जाएगी, दालें बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा ना जी। मैंने कहा उसका एक तरीका है, एक तरीका ये कि मैंने यहाँ मेरा किराया 30 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया, मेरा ज़ाहिर पैसे चलेगा, मेरे महीने के जो है ना 6,000 रुपये का मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने कहा 6,000 रुपये का खर्च कम कर दो, खाना तो खाता है ना वो।
मैंने बोला अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए 700 अरब रुपए हर साल दे सकते हैं कि कोई बड़ा सरबराह जो है उसकी नौकरी न जाए, तो यहाँ आप ये काम करें, उसमें से 150 अरब रुपया बनता है सारा। 50% रेट कर दें आटे का, चीनी का और एडिबल ऑयल का। तो मैंने बोला ये आपकी सारी सरदर्द खत्म हो जाएंगी और ये सारा काम जो है ना उसको यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। सब्सिडी दे रहे हैं, 2000 रुपये 1.25 करोड़ लोगों को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? भले ना व्हाइट कॉलर वाले भी बहुत तकलीफ में, उसको भी मिल जाए, और अगर अमीरों को मिल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, कोई नहीं। और IMF के साथ जब आप IMF के पास जाते हैं तो आपको पेरिस क्लब भी जवाब देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जवाब देता है, जितने और डोनर्स हैं, आपको सऊदीया भी जवाब देता है, AU चाइना भी देता है। IMF इज अ सर्टिफिकेट। अगर आप अमेरिका लोग इसमें गए हो, आपके किसी बड़े गए हो, तो उनसे पूछेगा, पहला क्रेडिट कार्ड इज द डिफिकल्ट, बाकी आपके पास जो है ना घर में क्रेडिट कार्ड 12 आ जाते हैं, पहला लेना मुश्किल होता है। IMF इज द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। आप कुछ कहेंगे सर? बहुत शॉर्टली हो, सब टाइम नहीं है बस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कादिर भाई एक मिनट, आउट ऑफ बॉक्स। कादिर भाई, जुबैर भाई जाएंगे, इनकी मीटिंग है, तो आप इनका शील्ड दे दें। शील्ड सर, जुबैर भाई शील्ड दे दें। शील्ड के कर लेना, शील्ड की कर लें, 10 मिनट कर लेंगे। और जुबैर मोतीवाला साहब, a big round of applause for him. कैसर बंगाली साहब, अब्दुल कादिर मेमन साहब, मोहम्मद अकरम साहब, एंड डॉक्टर अयूब मेहर साहब। I would request for a group photograph. अस्सलाम वालेकुम। बेटा नाम अपना बताओ। सर मेरा नाम फ़ायज़ा है और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी सर ज़ुबैर ने भी और सर कैसर ने भी यहाँ पे तज़किरा किया कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गई है और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और बजाय उसके हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और एक नॉर्मल मतलब इंसान को भी पता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी क्या हिंड्रेंसेज हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही कि वो इम्पोर्ट अपनी उन क्रॉप्स की जो हम ग्रो कर सकते हैं वो कम करे और एक्सपोर्ट पर जाए या इवन ग्रो ही कर ले जो हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए। इस हमारी बदकिस्मती ये है कि चंद लॉबीज़ हैं जो इस मुल्क में पॉलिसीज़ बनाती है, वो कौमी मफाद के लिए नहीं बनाती, अपने मफाद के लिए बनाती है। मैं पेपर का मिसाल दूँ। पेपर बहुत दरख्त से बनता है। हमारे पास कोई ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एकरेज है, कम है। तो हमारे पास लकड़ी नहीं है जिससे हम पेपर बना सकते हैं। तो एक नेचुरल हम कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है जो लोग इकोनॉमिक्स में के हैं, यू नो व्हाट कंपैरेटिव एडवांटेजेस। हमारे पास 3 पेपर मिल्स हैं, कागज़ बनाते हैं, और चूँकि और किताब छपती है कागज़ से। टेक्स्ट बुक थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो ये कहता है कि रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम रखें, फिनिश प्रोडक्ट पे ज़्यादा रखें, ताकि हम रॉ मटेरियल मंगवा के यही चीज़ें बनाएं
उससे रोज़गार बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। हमारे यहाँ पेपर पे बहुत हाई ड्यूटी है और इसकी जो एग्रीगेट ड्यूटी बनती है वो 51% बनती है मुख्तलिफ चीज़ें मिला के कागज़ पे। और वो इसलिए है कि जो 3 पेपर प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें इंपोर्ट से, ताकि इंपोर्टेड पेपर सस्ता होगा तो इनका नहीं बिकेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि बुक्स आर ड्यूटी फ्री, बुक्स पे ड्यूटी नहीं है। और अब हाल ये हो गया है कि उर्दू के कायदे बाहर से छप के आ रहे हैं, इसलिए कि किताब मंगवाएंगे ड्यूटी फ्री होगा, कागज़ मंगवाएंगे ड्यूटी पे करेंगे और फिर छापेंगे तो किताब महंगी होगी। कई साल पहले तक ताज कंपनी एक होती थी, पता नहीं अभी है कि नहीं, उनके कुरान शरीफ इतने अच्छे होते थे। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मुल्क के बाहर रहते हैं, मेरी मदर की फैमिली 100 साल से हांगकांग में रहती है। तो हम जब भी कोई कहीं जाता था या आता था, उनकी फरमाइश होती थी कि एक कुरान शरीफ ले आए पाकिस्तान से। अब हम बाहर के चाइना के छपे हुए कुरान शरीफ यहाँ बिकते हैं। हमने 3 पेपर मिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री तबाह कर दी। तमाम बाकी शोबों का यही हाल है। ऑयल इंपोर्ट लॉबी ने हमें अपना कोयला इस्तेमाल नहीं करने दिया। 1988 से कोशिश की जा रही है थर कोल से पावर प्रोड्यूस करने की, हुकूमतें गिरा दी गई, लेकिन ये ऑयल लॉबी ने करने नहीं दिया। और 25% ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर ऑयल, ये हम 1/3 कम कर सकते हैं अगर NLC के बजाय अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के ज़रिए करें। रेल इज़ 1/3 फ्यूल मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन रोड ट्रक्स। हमने रेलवे को तबाह कर दिया NLC को प्रमोट करने के लिए। तो ये लॉबीज़ जो हैं ये पाकिस्तान को तबाह कर रही है। जी, नाम अपना पहले सवाल। जाहिद फारूक नाम है मेरा। अर्बन रिसोर्स सेंटर URC के नाम से एक इदारा है, अर्बन इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मेरा डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से एक पुराना रिश्ता है, दोस्ती का, अकीदतमंदी का। दोस्ती तो थोड़ा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कमज़ोर मईशत के बजट में क्या हेल्थ, एजुकेशन और इस शहर की ट्रांसपोर्ट के लिए, इस शहर के जो कराची कंट्रीब्यूट करता है, कुछ उम्मीद रखें हम शहरी कि हमें सर्विसेज के लिए कुछ बेहतर उम्मीद रखें। आखिर में एक कमेंट्स है कि हम सिर्फ सवाल, ये सवाल हो गया, सिर्फ सवाल जी। जाहिद, थैंक यू जी। कोई जवाब देगा? आई थिंक सब सारे जितने भी इश्यूज आपने कहे, they all are provincial related. So I think since we are talking about the federal, इसमें अकरम भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको बता ही रहा था कि ये सारे प्रोविंशियल सवाल हैं। बैठ जाओ अभी प्लीज़। इसमें अकरम भाई जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये कि देखें हमें अब हर बजट में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त पाकिस्तान इज़ नंबर 3 ऑन द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, नंबर 3 है। इन लास्ट ईयर इन 2020 पाकिस्तानियों ने $20 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ईगो ये है कि जी इसको टैक्स ना किया जाए बिकॉज ये इलीगल है। इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि चाहे इनकम होनी चाहिए, इलीगल हो या लीगल हो, इट हैज़ टू बी टैक्स्ड। द ओनली थिंग इज़ दैट अभी एक ग्रुप है जो इसको टैक्स नहीं होने दे रहा। 20 बिलियन, द थाईलैंड हैज़ ऑलरेडी टैक्स, इंडिया हैज़ ऑलरेडी टैक्स्ड, number of countries have already taxed the trading of the cryptocurrency. Although it is on the cloud, but it is not impossible to bring that cloud into the trading. Number 2, हम आज PCT में, कस्टम में आज भी हम 8 डिजिट पे खड़े हुए हैं। दुनिया 16 डिजिट पे चली गई है। Why 16 डिजिट पे? बिकॉज 16 डिजिट से जब आप कस्टम पे जाते हैं तो आपके पास ये लेवी आ जाती है, ये लेवरेज आ जाता है कि आप हाई
को जिसको टैक्स करना चाहते हैं उसको हाई डिजिट पे ले जाते हैं, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रियां जो हैं वो आज कोई 12 पे चला गया है, कोई 16 पे चला गया है, कोई 14 पे चला गया PCT पे। तो दैट वी नीड टू एज अ बजट मेकर वी नीड टू गो। अब होता क्या है कि बजट की जो एक्सरसाइज शुरू होती है वो आखिरी दिनों में शुरू होती है। उन आखिरी दिनों के अंदर बजट बनाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिनका ना बिजनेस से कोई वास्ता होता है, ना जिनका किसी चीज़ से वास्ता होता है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है। दे नीड टू बी हैव अ बजट इज़ अ पॉलिसी थिंग। सो बजट हैज़ टू कम आउट ऑफ द FBR एंड इट नीड्स टू बी डन बाय द पॉलिसी बोर्ड। थैंक यू जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलियास है और मैं इलियास मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। मुझे एक ये सवाल होता है कि पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, हर नया गवर्नमेंट आते हैं वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं, तो इसकी वजह से ना आप कोई भी रिफॉर्म ले आए ना तो वो चेंज करे तो तसलसल नहीं होता, इसकी वजह से वो। शुक्रिया। इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ये वो मुल्क है जहाँ कोई हुकूमत अपना टर्म पूरा नहीं करती। इटली का तो 2.5 साल का एवरेज है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ये तमाम मुल्क जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अपने राजगन है। इसलिए उसकी वजह ये है कि रियासत का एक एजेंडा है माशी तरक्की का, हुकूमतें आती है जाती है। हमारा मसला ये है कि हमारी रियासत का माशी तरक्की का एजेंडा नहीं है। फ्रॉम 47 टू 77 ये 30 साल जो थे पाकिस्तान एक डेवलपमेंट स्टेट था। पाकिस्तानी रियासत का एजेंडा था माशी तरक्की हासिल करना। इस दौरान हर किस्म की हुकूमत आई, एक फ़ौजी हुकूमत भी आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई, कैपिटलिस्ट भी आई, सोशलिस्ट भी आई। लेकिन ये 30 साल में अयूब खान हो, भुट्टो हो, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, बहुत माशी असासे बनाए। बड़े बड़े इदारे जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो उस दौर में बने। 77 के बाद रियासत का मकसद ही ख़त्म हो गया, माशी तरक्की करना। तो मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नहीं है, मसला ये है कि रियासत का एजेंडा नहीं है। इस दुनिया में मुल्क है जो डेमोक्रेटिक है, जो डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लेकिन जब रियासत का एजेंडा होता है माशी तरक्की, वो हासिल कर लेते हैं। हमारा मसला ये है। सब हम जो पूरी डिस्कशन सुनी है, हम बड़ा कोई बहुत ब्लीक पिक्चर दे रहे हैं आप पाकिस्तान के हवाले से, बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, सो आई विल डिफर देयर। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इस वक्त, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जो है वो छोटी नीटी ग्रिटीज जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? आप एक्चुअली जो असल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। वी आर इन अ सिस्टम ऑफ डेट जो न्यू लिबरल्स का है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है बाय पॉलिसी 1993, और उसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं। एंड उसी लिए हम कर्ज, इट्स अ कर्ज साइकिल, द मोर यू पुश इट द बिगर इट विल गेट। तो हम तो उस एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज वन पार्ट, अनफॉर्चुनेटली आपका जो पार्ट है उस सिस्टम को चलाने के लिए आप तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना, आप MBAs करके दे रहे हैं कि ये ले लोग चलाएं इनको, टैक्स वाले बातें करेंगे, इतनी सारी स्लैब्स हो। वेयर इज़ द आइडिया? हम चाहते क्या है? दिस इज़ नॉट वी। तो एक्चुअली बात यह है कि आप भी एक वो क्लास हो जो अपना इंटरेस्ट देख रही है, एक और क्लास है वो ज़मीनों में अपना इंटरेस्ट देख रही है। इनको व्हाट दे नीड अ डायरेक्शन बेसिकली कि हमने ये करना है, व्हाट वी आर। हम ये बात क्यों नहीं करते सर? ये आपने जो बात की है यही हम 1 घंटे से यही बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। हम मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही था कि हम अब कर्ज़ा ले रहे हैं कर्ज़ा देने के लिए, तो वो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़ुबैर साहब ने हम सब ने यही बात की है कि हम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम मईशत को डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमने एक खोखली इकॉनमी बनाई है, कसिनो इकॉनमी, सट्टेबाजी से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप अगर बंद करना चाहते मैं कोई एक स्टेटमेंट दे दूं। अच्छा, मैं
बहुत मायूसी की बातें हुई है जी, लेकिन मायूस आप उस वक्त होते हैं जब आप हथियार डाल देते हैं। जब तक आप लड़ने को तैयार है, आपके अंदर हिम्मत है और आप खड़े हैं, तब उस वक्त मायूसी नहीं होनी चाहिए। हम जब स्टूडेंट्स थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हम कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम बर्न्स रोड जाते थे, किसी को थोड़े बहुत पैसे दे के टाइपिंग करवा ली, एक पैम्फलेट बनाया, छपवा लिया, वो भी उधार पे छपवाते थे चूँकि इतने तो पैसे नहीं होते थे। फिर बस स्टॉप पे खड़े रह के हम पैम्फलेट बांटते थे। वियतनाम में वॉर चल रही थी, उस पर भी हम एहतजाज करते थे। आपसे शिकायत ये कि आप किसी चीज़ पे एहतजाज नहीं करते। आपके पास एक हथियार है जो बहुत पावरफुल है, वो इंटरनेट है। विद द क्लिक ऑफ अ बटन ऑफ अ माउस यू कैन रीच 1 मिलियन पीपल। अपनी राय का इजहार करें, प्रोटेस्ट करें। हमने जो बातें की हैं, आप अगर अग्री नहीं करते हैं, आपका राइट है, और बल्कि आपको सोचना चाहिए कि आज जो बातें सुनी है, कौन सी चीज़ें हम सही समझते हैं, कौन सी चीज़ सही नहीं समझते हैं। Don't accept everything that we say. Don't accept everything that the media says. Don't accept everything that your government says or opposition says. खुद सोचें, जो चीज़ सही है उसे एक्सप्रेस करें। जहाँ एहतजाज करना है, 2 लाइन लिख के आप क्लिक करें और एहतजाज करें। आपकी जो ट्रेंड करेंगे अगर आपका एहतजाज, वो बात पहुँचेगी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। प्ले योर पार्ट। मायूसी की ज़रूरत नहीं है, फाइट, बगावत करें। बगावत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, बगावत से हुई है। जो इजाद होती है ना साइंटिफिक, वो बगावत से होती है। क्योंकि जो साइंटिस्ट होता है वो कहता नहीं जी ये पुराना तरीका ठीक नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं कोई नया तरीका निकालूंगा। वो बगावत है। तो बगावत करो, बगावत अच्छी चीज़ है। रियाज साहब, मैं आपसे अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, स्टिल रिमेन द सेम। पाकिस्तान के लिए आज भी ये बात है कि ये ज़रा नम हम करें इसको तो इंशाल्लाह ये ज़रख़ेज़ है। मैं एक बात ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज अगर इस जंग फोरम से अगर हम एक मैसेज सुन लो सही, एक मैसेज अगर हम ये कर लें कि चंद पॉइंट्स जो इकोनॉमिक रिलेटेड हैं, उस पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, दैट विल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट दोज इकोनॉमिक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, हम आज सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी, ईच वन ऑफ अस। अनटिल एंड अनलेस वी लव आवर कंट्री, हम सब बहुत ज़्यादा तकरीरें करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं जब हम 4 लोगों में बैठते हैं, लेकिन जब मुझे कोई एडवांटेज लेने का आता है तो मैं अपनी कंट्री तक को भी नहीं छोड़ता हूँ। दिस नीड्स दिस पोजीशन एज ए यंग, एज ए ओल्ड, एज ए every one of us has to inculcate in our own, within ourselves, that we will love this country. We will on the condition of the country, we will not compromise anything. We will love this country because of the reason, until unless we love ourselves, can we live a good life? We cannot. तो मेरा ख्याल ये है कि ये अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को, I've been to the 42 countries of the world and many times. Pakistan is one of the finest, beautiful, worthy of being, potential country in the world. So, and you being a Pakistani are the best individuals on the earth. इतनी आपकी अच्छी IQ है, इतना अच्छा आपका EQ है. Emotional quotient is the best Pakistani has. Thank you, we sir. need to come out of that, Ayub Meher. थैंक यू वेरी मच। लास्ट वर्ड। लास्ट में जो देखिए रियाज आंधी साहब ने जो पॉइंट रेस किया था, हम वही डिस्कस करते रहे 1 घंटे तक। और आज का टॉपिक भी जो हमारा था कि चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सलूशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव भी वही था। उसी जंग फॉर्म हम करते हैं, आखिर में हम कंक्लूजन में ज़रूर रिकमेंडेशन देते हैं
तो आज भी ऑब्जेक्टिव ये था, जो हम चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ जो आज का टॉपिक था, जितनी भी डिस्कशन की है वो आपके बेसिकली क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन चैलेंजेस की रिकमेंडेशन क्या हैं, वो हमने बेसिकली डिस्कस करनी थी, वो डिस्कस किए हैं। और एकेडमिया का रोल, बेसिकली एकेडमिया का रोल भी ये होता है। एकेडमिया में जंग फोरम आज कराने का मकसद ये था कि एकेडमिया अपना रोल एक वो नहीं कि जो एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन आ रहा होता है, बल्कि कोई नोवेल्टी होनी चाहिए, कोई नोवेल सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए हमने ये एफर्ट्स की थी और वो हमने कंक्लूड किए हैं कुछ चीज़ें जो अब बाद में आप देख लेंगे हम जब पब्लिश होगा। शुक्रिया यूमेर साहब। ज़्यादातर जंग फोरम एकेडमीज यूनिवर्सिटीज़ में ही होते हैं, IBA में, ज़ैबिस्ट में, दादाबाई में, इंडस में, कैसबिट में, इकरा में तो शायद कम हुए हैं, दूसरे ही है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हो। मकसद ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोग को सीखें, कुछ सवाल उठाएं, सवाल पूछें, अपने जहन को सोचें। बदकिस्मती ये है कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं वैसे ही निसाब पढ़ते हैं, हम गौर नहीं करते, हम समझते नहीं हैं। कुरान को भी समझ के पढ़ना चाहिए और निसाब को भी समझ के पढ़ना चाहिए। फ्यूचर आपके हाथ में है, आप नए वोटर हो, आपके हाथ में है। आप उस दौर के बच्चे हो कि जिसमें रिसर्च कोई मुश्किल ही नहीं है, एक क्लिक पे आपके हर एक के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम ऐसे सवाल कर जाते हैं कि लगता है कि उन्होंने ना किताब पढ़ी है, ना मोबाइल देखा है, ना गूगल गए हैं। ये सारे सवाल आप खुद जवाब दे सकते हो, जस्ट 30 सेकंड के अंदर मिल जाता है आपको। एक बच्चे ने सवाल किया रशिया के माहदे का, ये सवाल नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं है, नथिंग। गूगल करो, मिल जाएगा जी क्या माहदा हुआ था, आपके हाथ में, आप शेयर कर दो जी ये माहदा हुआ था, ये कैंसिल हुआ है। किताब पढ़ो, मैं हमेशा बोलता हूँ निसाब नहीं पढ़ो, निसाब से हट के किताब पढ़ो। यहाँ बहुत कम बच्चे होंगे जो निसाब से हट कर किताब पढ़ते हैं। निसाब से हट कर किताब पढ़ो, वो आपको ज़िंदगी में लेके जाएगा आगे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। अकरम साहब आपका शुक्रिया, कैसर बंगाली साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इकरा यूनिवर्सिटी। अयूब मेहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड अब्दुल कादिर मेमन साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू।